فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تاریخی شہر حیدرآباد میں رمضان کی رونقیں دیکھنے لائق ہیں۔ فرزندان توحید نمازوں، عبادات، ریاضت، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، دعاؤں اور ادائیگی زکوٰۃ و فطرہ میں مصروف ہیں۔ لوگ اس ماہ مقدس کی ایک ایک ساعت کو قیمتی جان کر خالق ارض و سما کو منانے، بندگی کا حق ادا کرنے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید میں سرگرم عمل ہیں۔ مساجد، درگاہوں، بارگاہوں اور خانقاہوں میں عبادت کے روح پرور مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف قرآن پاک کے نزول کے اس رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور فضیلتوں والے بابرکت ماہ میں شہر کی خصوصیت کے ساتھ سجایا اور سنوارا گیا ہے۔ بازاروں میں خریداروں کا ہجوم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ شہر کے بازاروں میں خریداری عروج پر ہے۔ ماہ قبل اور ماہ بعد افطار، کپڑوں اور دیگر سامان کی خریداری زور و شور سے جاری ہے، جس کا سلسلہ رات دیر گئے تک اور پھر سحری تک بھی جاری ہے۔ بازاروں میں ہر قسم کے ملبوسات دیکھنے کو مل رہے اور کئی مقامات پر کپڑوں کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں، جہاں عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا۔ مختلف ورائٹیز، پروڈکٹس اور اشیاء لوگوں بالخصوص خواتین کو اب طرف راغب کر رہے۔ کئی تاجروں نے اس سال عید کی شاپنگ کے لیے لگائے گئے سٹالز پر عوام کے ہجوم اور بہتر رد عمل پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی فروخت کافی اچھی ہو رہی۔ کرتا پیجامہ، ڈریس مٹیریل، چکن کرائی سوٹ اور ہمہ اقسام کے کپڑوں کے یہاں پر سٹالز اور دکانات لگائی گئی ہیں جو عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ان دکانات میں بہترین ملبوسات کی بڑی تعداد میں سٹاکس موجود ہیں۔ دوسری طرف حلیم کی بھی دھوم ہے۔ حلیم کی مختلف ورائٹیز یہاں دیکھنے کو مل رہی، جس کا مزہ چکھنے کے لیے ریاست کے مختلف مقامات سے لوگ پرانے شہر حیدرآباد کا رخ کر رہے۔ یہاں کی حلیم کافی مشہور ہے۔ پستہ ہاؤس، شاہ غوث اور دیگر ہوٹلوں کی حلیم کا کاروبار کافی عروج پر پہنچ گیا ہے۔ عصر کے بعد سے ہی لوگ حلیم خریدنے کے لیے ان ہوٹلوں کا رخ کر رہے، جس سے سڑکوں پر ٹریفک جام بھی ہو رہا۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے حکام نے کہا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ اور اعظم ترین درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مشورہ دیا ہے کہ ریاست کے بعض اضلاع میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ 30 مارچ تک حکام نے نرمل، عادل آباد، جگتیال، نظام آباد، راجنر، سرسلہ، پیداپلی، محبوب نگر، نلگنڈا، کھمم اور محبوب آباد اضلاع کے لیے ہدایت جاری کی۔ ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت پہلے ہی 42 ڈگری کو پار کر چکا ہے۔ رات کے وقت یہ درجہ حرارت 28 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں 28 تاریخ سے گرم ہوائیں چلیں گی اور بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، سوریہ پیٹ، نلگنڈا، محبوب نگر اور نارائن پیٹ اضلاع میں گرمی کی شدت زیادہ رہے گی۔ سٹی پولیس کمشنر حیدرآباد سرینواس ریڈی نے پرانے شہر حیدرآباد کے چار مینار اور مدینہ مارکیٹ علاقوں کا اچانک معائنہ کیا۔ شب انہوں نے علاقے میں کیے گئے اس معائنے کے دوران اپنے ماتحت عہدیداروں کے ساتھ علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ تہوار امن کا تہوار ہے اور اس تہوار کو خوشی سے منایا جائے اور سکون سے منایا جائے۔ اسی لیے اس ضمن میں انتظامات کی اور سیکیورٹی کے لیے یہ دورہ کیا گیا اور کئی لوگوں سے بھی ملاقات کی گئی۔ رمضان کے اوسر پر یہ پرانے شہر میں یا جو رمضان تیوہار منا رہے، یہاں کے لوگ کے ساتھ گھومنے پھرنے میں آیا ہوں اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں کی سیکیورٹی ارینجمنٹس کیسے ہے، ہمارے لوگوں کا الرٹنس کیسے ہے، ٹریفک خاص کر کے ٹریفک کا کیا یہاں سچویشن ہے وہ دیکھنے کے لیے آیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ تو پورے ساری دنیا میں یہ مشہور ہے، یہاں ہمارا اولڈ سٹی حیدرآباد پرانے شہر کا رمضان کے ٹائم پہ یہ جو جشن اور
ये जोश होते हैं तो पूरे सारे दुनिया में ये बहुत मशहूर है। तो यहाँ आके हैदराबाद कोतवाल के रूप में मैं यहाँ आके यहाँ कुछ समय गुजारने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ हमारे लोग सारे बंदोबस्त पूरे हिसाब के साथ निभा रहे और अगले आने वाले दिनों में भी यहाँ किसी आदमी को किसी संस्था को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तो अपने या पुराने शहर के लोगों के रिक्वेस्ट पे हमारा गवर्नमेंट भी यहाँ के दुकान, होटल्स, पान शॉप जो भी है यहाँ, क्योंकि आधी रात में यहाँ पूरा ये यहाँ जागृति आता है, तो पूरे वो टाइम का जो है नॉर्मल सिचुएशन पे जो टाइम है तो उसका रिलैक्सेशन करके सुबह तक ये चालू रहने के लिए वो ये भी हम ऑर्डर इशू किए थे। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और यहाँ की पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के रमज़ान मुबारक। पहले सबको रमज़ान मुबारक है और हम हमेशा इनके साथ मिल के काम करेंगे इस शहर के नाम के लिए, इस शहर के डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 मर्द और 2 खवातीन समेत 6 नक्सली मारे गए। पुलिस ने जायवाखू से भारी मकदार में धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया। नक्सलियों की प्लाटून नंबर 10 के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 नक्सलाई मारे गए नक्सलियों में एक कमांडर भी शामिल है। कश्यप ने कहा है कि जायवारदात से 6 बंदूकें, भारी मकदार में धमाका खेज मवाद और वायरलेस सेट बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि ये मुठभेड़ बासागुड़ा इलाके के चेकुर भट्टी इलाके में तालपेरू नदी के किनारे हुई है। इलाके में ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की असेंबली से लेकर सड़कों तक पर जारी एहतजाज के दौरान अहलिया सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को बड़ा इंकशाफ कर रहे। वज़ीर आला केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला को आप सबकी फिक्र है, वो शराब घोटाले पर 28 मार्च को इंकशाफ कर रहे। उन्होंने मजीद कहा, अरविंद जी ने मुझे एक और बात बताई, इस मुबैना शराब घोटाले में 2 साल में कई जगहों पर छापे मारे गए, लेकिन एक पैसा भी नहीं मिला। उन्होंने सिसोदिया जी की यहाँ, संजय जी की यहाँ छापा मारा और हमारे यहाँ भी छापा मारा, लेकिन उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला है। सुनीता केजरीवाल के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा, मेरा जिस्म जेल में है लेकिन मेरी रूह आप लोगों के साथ है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की अदालतों में विकला के एहतजाज पर अदालत ने संगीन नताइज का इंतबाह दिया। अदालत ने कहा कि अदालत का दरवाजा खटखटाना हर किसी का बुनियादी हक है और अगर कोई किसी को ऐसा करने से रोकता है तो उसके संगीन नताइज रोनुमा होंगे। अदालत ने ये इंतबाह एक वकील की जानिब से दायर उस शिकायत पर समाअत के बाद दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले और हाई कोर्ट के अहाते में एहतजाज करने की मुखालिफत की गई थी। आम आदमी पार्टी की लीगल सेल की जानिब से अदालत को अहाते में एहतजाज के ऐलान के खिलाफ एडवोकेट वैभव ने अपनी शिकायत में कहा था कि किसी के सियासी मकासद के लिए अदालत को मैदान जंग बनाना दुरुस्त नहीं। इस पर समाअत करते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा, अगर आप समझें तो बेहतर होगा। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते रहते हैं। अगर अदालत के अहाते में मुजाहरा किया जाता है तो इसके संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। अदालत ने कहा, अदालत में आना हर शख्स का बुनियादी हक है, इससे किसी को नहीं रोका जा सकता। अगर किसी ने किसी को इस बुनियादी हक से रोका तो इसके बहुत संगीन नताइज होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा हटाने के मुतालिक वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इसमें मजीद इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जब कहा जा रहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हैं तो अब अफस्पा हटाने में इंतजार किसका है, ऐसे पहले ही किया जाना चाहिए था। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जिले सतह बडगाम में एक अवामी रैली से खिताब के
बाद नामनिगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक अफस्पा हटाने की बात है तो बिस्मिल्लाह करके ये शुरू किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि जब कहा जा रहा कि हालात ठीक है, मिलिटेंसी खत्म हुई है, अलहदगी पसंद सोच नहीं रही, जम्मू कश्मीर में ऐसे नॉर्मल हालात कभी नहीं थे जैसे आज हैं, तो इंतजार किसका किया जा रहा, ये तो पहले की किया जाना चाहिए था। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सऊदी अरब पहली मर्तबा मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेगा। 27 साला मॉडल और इन्फ्लुएंसर रोमी अल कहतानी मिस यूनिवर्स 2024 के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में 27 साला मॉडल ने अरबी में लिखा कि मुझे मिस यूनिवर्स 2024 मुकाबले में शिरकत का एजाज हासिल हो रहा। ममलिकत सऊदी अरब पहली मर्तबा इस मुकाबले में हिस्सा ले रहा। कहतानी ने सऊदी अरब के परचम के साथ अपनी तस्वीर भी पोस्ट की हैं। कहतानी का ताल्लुक रियाद से है। चंद हफ्ते कबल उन्होंने मलेशिया और दीगर मुकामात पर होने वाले मुकाबले हुस्न में हिस्सा लिया था। वो मिस सऊदी अरब के अलावा में मिडिल ईस्ट भी हैं। उम्रा ज़ायरीन लाइल्मी की वजह से सफ़र में कुछ ऐसी अशिया अपने साथ लाते हैं जिनको लाना सऊदी में ममनू है। इन दिनों उम्रा के लिए दुनिया भर से एक गैर मामूली तादाद सऊदी अरब पहुंच रही। इसलिए सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने एक बार फिर कहा कि उम्रा पर आने वाले मुसाफिर अपने हमरा ममनू अशिया ना लाएं। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा ने अपने एक ट्विटर अकाउंट पर जारी वजाहती बयान में कहा है कि वो तमाम उम्रा ज़ायरीन जो किसी भी रास्ते से मुमलिकत पहुँचते हैं वो अपने हमरा मुमलिकत में ममनू अशिया ना लाएं। ममनुआ अशिया लाने वालों को कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जिससे वो मुश्किलात का भी शिकार हो सकते हैं। वजारत का मजीद कहना था कि ममनुआ अशिया में लेज़र व आतिशबाजी का सामान, जाली करेंसी और गैर रजिस्टर्ड अदविया वगैरह शामिल हैं। उम्रे की गर्ज से बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन मुमलिकत आमद से कबल इस हवाले से तसल्ली कर लें कि वो जो अदवियात ला रहे हैं वो मुमलिकत में मना तो नहीं। वजारत का कहना है कि किसी अनजान शख्स से कोई चीज़ वसूल ना करें क्योंकि इस तरह भी वो मुसीबत में आ सकते हैं। यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर
آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ کیبن ہیڈ لائنز اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔